హలో నమస్కారం. నమస్కారం. భూపాల్ రెడ్డి గారు నమస్కారం and welcome. Thank you, sir. Thank you. So we'll wait for some more time, let others to join. Okay. Then we will start the meeting. Deepa, are you there? Dr. Yes, Deepa? sir, I'm here. Yes, sir, I'm here. Okay. Sir, your voice is breaking. It is okay. No. Mobile, okay. Hello. Yes, please, बोलिए. Yeah. I'm okay with you. I'm audible. Now it is good. Previously it was breaking. Okay. What about Jayesh Raninga? Okay. He has joined, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. 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 So we'll wait for some time and start the meeting. Good afternoon to all the participants. So we have around 13 participants as of now. So hope everybody will join. We'll start the meeting. So Yeah. far we have 14 participants. So we can still wait for 5 minutes. Mhm. So सबको मेरा नमस्कार and welcome to this MediHub meeting. This is again we organize every fortnightly this meeting, and today's is we are talking something on agri waste because also a lot of business opportunities with agri waste. So this is just to highlight things. We have around 14 participants as of now. We'll wait for another 2-3 minutes. Then we will start the session. Anyway, we'll Deepa, what we do, we will start introducing things. So then we will continue with the presentation of this one. Yeah. So I welcome all the participants to this entrepreneurship development program. Again, this is being organized by MediHub Technology Business Incubator, and this is also in commemoration of our 75 years of independence. That is Azadi Ka Amrit Mahotsav. So in this line, so Deepa, can we go ahead with the meeting? Yes, sir. Okay. Okay. Well, let us begin the meeting, and good afternoon to all the participants.
especially who have joined this meeting. And this is again, welcome to this Entrepreneurship Development Program number 50, which is being organized by MediHub Technology Business Incubator. And with me, I just wanted to brief you the program. We have an introductory session followed by a presentation by Dr. Jayesh Raninga, who is an incubator at MediHub Technology Business Incubator, and also a presentation on MediHub by Dr. Deepa Patel, and followed by quick question and answer session will be there. So with this, I welcome all the participants to this program, and this is especially a very important topic because business with agri-waste. You can see that more than 80% of the produce, that whatever that agriculture produce is going as a waste, agri-waste. So a lot of waste will be there. So this we have to manage, and how to make this as a business venture. So that is the point of discussion today. Again, this meeting, we are expecting that there should be, we have to bring in startups in this sector. So like any other sector, we have to bring in startups. And one of our startup is again, is Jayesh Raninga, who has on how to manage this organic, this agri-waste. And similarly, you can see that a lot of aromatic and medicinal plants we cultivate, and only portion of that is being has an economic value. So rest is used as a waste. Say for example, if you can see that lemongrass and palmarosa, where you cultivate and you generate a lot of biomass, but the compost is essential to 9% is. So how to manage this kind of waste? And so that is a point of discussion, and later there are a lot of value addition can be done, and it is sometimes we call it as bonus to the business. So actual business is essential oil, but if you can manage and take care of this waste, you also give additional bonus to the business. So with this, the point in concern. So let me so go with this one. Let me introduce my speaker, Dr. Deepa. You can introduce Mr. Jayesh. So Yes, sir. Yes, sir. and present a brief biodata of him, Sure, and sir. we'll proceed. Yeah. Okay. So, dear participants, today Mr. Jayesh Raninga is going to talk about the topic that is business from agri-waste. And by qualification, Jayesh sir is MSc Agriculture, Plant Pathology from Junagadh Agriculture Universities. He has various company job experience. He has worked at Nagarjuna Agri-Chemistry, Biostud India, Adama India Limited, Shriram Fertilizer Limited, Indophil Industries Limited, and he has total 13 years of experience of doing job, and then he started up with his business. His keen interests are residue-free farming, organic farming, and farm advisories. So in that, he has achieved to make innovations, and he has introduced to market some of the products, and the couple of products which I can name over here is Trinetra, that is organic waste decomposer, Hytonic Plus. It's a new type of plant defense inducer based on nanotechnology. Brudajivan, that is organic soil conditioner, and Trishul, that's honeybee attractant organic fungicides. I hope he's going to discuss all these things in detail, and that's how we are going to get the insight into his business. And overall, if we talk about, he has so many awards and achievements in his bag. He had won innovation approved by Agni,
that is Invest India, selected in runner-up group of Land Accelerator Program, declared in top 22 finalists for FLCTD accelerators 3 organized by UNIDO, BEE, GEF, Sangam Ventures, and Startup India, considering contribution to environment for low and negative carbon. Now, that is the need of an hour for, I suppose, for globe, we can say, not only for India. So that's how he's contributing from his side. His presentation would be mix and match of Hindi, English. I hope people who don't understand Hindi can raise a question. Will be very happy to help. But see, the topic is very sensitive. It's very into advantage for the economy and environment. So we hope whatever queries are there, just post to us, ask in the Q&A round. We'll be very happy to help. So, but be there to listen to him and be there with us. Now I'll hold over this to Mr. Jayesh. Jayesh, sir, can you start with your presentation now? Yes. Okay. You can share. I have made you a co-host. Is the screen visible now? No. Deepa, can you give sharing rights? You just have to make that green button. Click that. Post this image. Just a minute. Multiple participants to share the screen. You just activate that one, so you can able to share. Okay. He's sharing it. Okay. Kindly put it in presentation mode, sir. Yes. Slide number 1. Okay now? Yeah. Jayesh, go ahead. So I think this is a radio program with a video. Will be continuing. Hello? Yes, sir, you are good to go. Please start. Yes. Namaste, all participants. Today, this is Jayesh Raninga from Green Grow Secretech Private Limited. Hello, is it okay now? Yes, sir, you can just scroll down the arrows and Yes. that's how it would navigate to next page. Yes. Namaste all participants. We are thankful to MediHub TBI and Director of Medicinal and Aromatic Plants for providing this is a fantastic opportunity to present our innovations and our product range on this platform. Today we are going to discuss the topic business with agri-waste. We know that tremendous number, in we can say thousands and millions of tons of agri-waste are generated in the form of crop waste, in the form of animal waste, in the form of industrial waste. So we will talk how to commercialize it and how to get best benefit from this waste. First of all, I would like to congratulate MediHub TBI and DMAPR, Dr. Reddy sir, Dr. Satyajit Roy sir, and the whole team for being recognized by Sri Narendra Modi sir in his last Mann Ki Baat of 27th September.
So this is a good achievement for MediHub TBI, because since last only 2 years the MediHub TBI is started, and they have incubated more than 15 number of incubation startups. And this work of Dr. Reddy and Dr. Roy Saab and his team has been recognized at national level by Sri Modi sir. So it is a matter of congratulations, and we are congratulating you, sir, and the MediHub TBI for this fantastic achievement. We are proud of that we are a part of these 15 incubation startups. We are attached with MediHub TBI since last 3-4 months, and we are working with Dr. Reddy sir for various of our problems and what we are facing, what we need to do for growing in the market. And now we have achieved many things that we are not were able to do, and now we are doing it and getting the results by the Dr. Reddy sir's guidance. I'll start with Green Grow Secretech. Myself, Jayesh Raninga. I am co-founder of this Green Grow Secretech. Green Grow Secretech is a private limited company which is dealing in the supply of organic agrochemicals. All of our inputs that we are providing for organic agriculture are certified and as per provided as per the NPOP standards of the APEDA. We have got a license from the control union, that is a certifying body approved by the APEDA. What we do in this green growth, we know first we identify the problem, what is the requirement of the current days, and then we start the research and then come to a final product after research. And after coming to a formulation, we are trying to for his performance in the field. And now we have total 12 number of product in our portfolio. So we are aiming to have maximum production with zero poison input. That is the need of our we can say today. सर हिंदी में चलेगा सर? Mix both mix and Hindi in English. Go Yes, ahead. sir. You are doing it well. तो आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर के सिनेरियो ऐसा है कि ज्यादातर लोग हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट दे रहे हैं। कुछ भी प्रोडक्शन क्रॉप लेना होता है तो जो खर्च हो रहा है वो चाहे सीड्स हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, तो एक बड़ा सा हिस्सा उस प्रोडक्शन के लिए चला जाता है और जो फार्मर के लिए बचता है तो वो एकदम कम रहता है। इसलिए ये एक बड़ा इश्यू है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है रिड्यूसिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1965 जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तब से लेके आज तक ये जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है और दिन ब दिन कम हो जा रही है। इसका मेजर रीजन है हाई यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो जब हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज लेके आए 1965 से और उसके बाद में जब हमने हायर प्रोडक्शन लेना शुरू किया और ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इतना फर्टिलाइजर और केमिकल्स हमने सोइल में डाला है कि सोइल की परत जो हम बोलते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम से कम हो गई है। तो ये एक बड़ा इश्यू है जिसको एड्रेस करना आज के दिन के लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट वन, फार्मिंग विथ लेस एक्सेस यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आज के दिन में भी फार्मर जो भी डाल रहा है, भले हम इंडिया के पूरे सेंस के लिए देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड यूजेज वाले कंट्री है उसमें हम नहीं है, बट फिर भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है जो कि जमीन की परत को प्रोडक्टिविटी एकदम खराब करने के लिए जवाबदार है। फिर जैसे काफी चीजें ऐसी होती है जिसका कंट्रोल मुश्किल रहता है। सपोज बात करें थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट की, नेमेटोड जैसे जीवाणुओं की, ग्रब्स, गुलाबी सुंडी, तो इनका
मैनेजमेंट फार्मर के लिए इतना बड़ा हेडेक है कि कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे फार्मर को स्प्रे लगाने पड़ते हैं, और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट खुद इतना ज़्यादा हो जाती है कि फार्मर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर उनको क्रॉप या तो जाने देना पड़ता है, और अगर पूरा कंट्रोल लेने जा रहे हैं तो कंट्रोल के लिए कॉस्टिंग एकदम ज़्यादा आ रही है। आज के दिन में कई लोग ऐसे हुए हैं कि फार्मर्स जो प्लानिंग दे आर प्लानिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इधर रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उनके लिए क्या स्टेप करना जरूरी है और कहाँ से गाइडेंस लेना जरूरी है, वो भी उन लोगों को पूरा गाइडलाइन का अभाव होने की वजह से ये लोग भी नहीं कर रहा है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है, हम ये सारे के सारे प्रॉब्लम ग्रीन क्रॉस एग्रीटेक में एड्रेस कर रहे हैं। जो कि जैसे बात हुई कि हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, तो एकदम हम लो कॉस्ट के अंदर फार्मर्स को इनपुट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। सोइल की प्रोडक्टिविटी जो कि दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उसके प्रोडक्टिविटी वापस लाने के लिए और सोइल की हेल्थ अच्छी करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए भी 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो भी फार्मर कर रहे हैं, हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टैंक, जब हमसे कोई जुड़ रहा है कोई फार्मर, तो पहले ही टैंक से हम उसका पेस्टिसाइड यूजेज 75% तक कम कर रहे हैं। वो ओनली 25% पेस्टिसाइड के साथ पहला साल आपका विथ कंप्लीट प्रोडक्शन विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सोइल एंड टोटल प्रोडक्शन इज नॉट अफेक्टेड विथ आवर प्रोडक्ट्स। कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जब खेती करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम आता है। तो ये चीज़ भी हम एड्रेस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हम का कम नहीं आने दे रहे। नॉर्मल फील्ड के अंदर जितना प्रोडक्शन आ रहा है, हम उतना ही प्रोडक्शन या उससे ज़्यादा दे रहे हैं हमारे जो प्रोडक्ट रेंज के वपराश के बाद। आज जो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्ट की, तो उसके मैनेजमेंट के लिए अगर देखा जाए तो जनरली एग्रीकल्चर यानी खेती के 2 अलग अलग हिस्से हम कर सकते हैं। पहला है फार्मिंग, जिसके अंदर हम सारे फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल्स, बागायत फसल और फॉरेस्ट्री का ग्रोइंग करते हैं। दूसरा है एनिमल्स के साथ, तो एनिमल्स हस्बेंड्री मीन्स काउ रेजिंग, काउ सेड हो गया, पोल्ट्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, या फिर हनी बी फार्मिंग। तो एनिमल के साथ और क्रॉप के साथ, दोनों के साथ हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, और दोनों ही ऑप्शन के अंदर हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। सपोज फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग के लिए हम जो फसल उगा रहे हैं, उसके बाद कटाई के बाद जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि सीड या फिर जो भी हम मार्केट कर रहे हैं, ट्यूबर्स या फिर फ्रूट्स, तो उसके अलावा जो भी बचता है हम उसको फेंक देते हैं या तो जला देते हैं। तो उसके जो फेंक देने वाली चीज़ों से, उससे भी हम लोग कॉमर्शलाइज करके उसको न्यूट्रिशन में वापस वपराश करके एक अच्छा सा प्रोडक्शन नेक्स्ट क्रॉप के लिए ला सकते हैं। इसलिए आज का ये सेमिनार हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो फार्मिंग नॉर्मली जो भी है वो प्रोडक्शन यूजिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, तो जो भी हम लोग आज तक करते आए हैं कि केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, वो भर भर के हम यूज कर रहे हैं और उससे हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। बट दूसरा एक ऑप्शन है आज जो हम लोग आज से कर रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम देखें तो हम इंक्लूड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अलग अलग सबका नाम है, बट फाइनली सबका एम एक ही है कि जहर के बिना या तो फिर केमिकल के बिना खेती। उसके अंदर हम वैदिक एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, जीरो बजट फार्मिंग बोल सकते हैं, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट मोरल लेस सबका उद्देश्य एक ही है कि केमिकल के बिना खेती। तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो बगैर केमिकल के खेती करना यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये आज के दिन की जरूरियात हो गई है। और काफ़ी सारे लोगों को
पता भी है और काफी सारे फार्मर्स इसमें जोड़ भी रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों है? तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पहले तो कम करता है, मिनिमम या तो फिर नहीं ही हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड के लिए, सोइल प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसका अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है। ये पिछले 1.5 साल में आफ्टर कोविड सिचुएशन हमने काफी इसमें बढ़त देखी है कि लोगों के ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के प्रति जो भी लगाव है वो अच्छा सा हो रहा है, और जो भी लोग रियल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उन्हों का भी एक इंटरेस्ट बढ़ा है और इनको अच्छा प्राइस और अच्छी इनकम भी मिल रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मीन्स क्या है? तो ऑर्गेनिक का मतलब ही है गुजराती मतलब अगर बोले तो कार्बनिक पदार्थों, और ये हिंदी बोले तो कार्बनिक। तो जो भी पदार्थ में कार्बन आ रहा है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसमें केमिकल के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको ऑर्गेनिक नहीं बोल रहे। तो कार्बन का अगर हम बात करें तो जमीन के अंदर से मीन्स बरसों से पहले से जो भी अवशेष सड़े हुए पड़े हुए उससे हम कार्बन ले रहे हैं, लाइक पेट्रोलियम है और कोल है, कोयला है। तो वो कार्बन के सोर्सेस है पुराने वाले। जो रेगुलर कार्बन हम जनरेट कर रहे हैं वो काफी सारे इंडस्ट्रीज से आता है और पूरे वातावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। आज के दिन में भारत में और वर्ल्ड लेवल पे काफी सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए या कार्बन नेगेटिव होने के लिए एकदम काम कर रही है। और हमें भी ये गर्व है कि हम भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं और हम भी कार्बन फुटप्रिंट घटा नहीं रहे बल्कि नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्बन हम लोग उत्सर्जित करते हैं हमारे श्वास से या एनिमल के श्वासोश्वास से और हमारे सारे प्रोडक्ट यूजेस से, तो हम उसी कार्बन को वापस एग्रीकल्चर के लिए यूज करके उसको प्रोडक्टिव वे में लेके आके और वापस उसका यूज करके क्रॉप के न्यूट्रिशन के लिए यूज करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये आज के दिन की जरूरियत भी है। इसी कार्बन का काम करते हुए अगर आप देखेंगे कि आज से 100-200 साल पहले जो भी हमारी जमीन का कार्बन था वो तकरीबन 3% से भी ज्यादा था, और तब भी खेती होती थी, तब भी कोई दवाई भी नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर भी नहीं था, तो भी हम लोग अच्छा सा फसल पका सकते थे। तो सबसे बड़ा कारण जो भी ये फसल पकने का था तो ये कार्बन था, क्योंकि जब भी कार्बन 3% से या 2% से ज्यादा जमीन में होता है तो पौधे की प्रतिकारक क्षमता इतनी बढ़ा देता है कि आपको कोई विष वाला केमिकल या फिर जंतुनाशक या फूगनाशक या देने की जरूरत नहीं रहती। तो और आज पिछले 50 सालों में हमने जो किया है वो इतना फर्टिलाइजर सिंथेटिक पेस्टिसाइड और जमीन में और फसल पे छिड़क के इतना खराब किया हुआ है कि ये कार्बन रेशियो 0.5 से भी कम हो गया है जमीन का, और उसकी प्रोडक्टिविटी चली गई। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना कैसे है? तो ये जब जमीन का कार्बन हम 0.5 से धीरे धीरे अगले 2-5 सालों में 0.5 से लेके 1 तक भी चले गए और इतना काम कर दिया तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जो भी फसल फार्मर्स उगा रहे हैं उसके लिए भी एक बड़ा सा आशीर्वाद रहेगा कि उसको लागत भी कम हो जाएगी और प्रोडक्शन भी एकदम बढ़िया सा मिल जाएगा। कार्बन की ये जो चेन है उसको हम वापस कार्बन को जमीन में से यूज करके न्यूट्रिशन के रूप में नेक्स्ट फसल को देके ये फसल को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके हम बेचेंगे, ये कार्बन यूटिलाइज अच्छी तरह से होगा और हम इसका अच्छा कॉमर्शियल प्रभाव देख पाएंगे। आज के दिन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि अभी नवंबर महीने अभी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी धीरे धीरे शुरू होना शुरू भी हो गया है,
कि उत्तर भारत के जो भी राज्य है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब, तो वहाँ पे पेड़ी यानी कि धान की कटाई के बाद खेतों को जलाया जाता है, जो फसल अवशेष बचते हैं उसके लिए। तो ये जलाने का काम काफी सालों से चलता आ रहा है और इसका रिजल्ट इतना बुरा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है कि एक स्मोग जैसी, मीन्स धुआं और फॉग दोनों मिक्स में जैसे सिचुएशन होता है, इससे काफी सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी जन्म लेते हैं और पूरा वातावरण का प्रदूषण लिमिट से बाहर चला जाता है। आज के दिन में गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी कुछ स्टेप्स कर रही है और हमने भी एक प्रयास किया है कि इसका एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फार्म एंड एनिमल वेस्ट। जो भी फार्मर रहते हैं उसको हर फसल के बाद भी कचरा रहता है। सपोज वो गाय भैंस कुछ भी पालन कर रहे हैं तो उसका भी कचरा निकल के आ रहा है, उसको भी हम एक जगह पे डंप करके उसमें से थोड़ा बहुत मीन्स 15-20% से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। जमीन की परत की जैसे हमने बात की पिछले 50 सालों के अंदर एकदम ज्यादा से हमने इसको खराब किया है और इसकी भी जरूरत है कि जमीन को परत सुधारना है। तीसरा मेजर प्रॉब्लम है कि सारे बड़े शहर या छोटे शहर जो भी हम मानव यूज कर रहे हैं उसको, वो जो चीजें फेंक देने वाली हैं उसका कचरे का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि लगभग हर दिन में 1.5 लाख मीट्रिक टन भारत के अंदर ये कचरा जमा हो रहा है। तो ये सारे कचरों को ठीक से कार्बन रिलीज करके उसके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके देने के लिए हम लोग एक हमारा इनोवेशन टाइप सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिनेत्र। हम इसको अगली पीढ़ी का वेस्ट डिकम्पोजर बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट में आज के दिन में काफ़ी सारे डिकम्पोजर टाइप्स अवेलेबल है जिसमें 20 रुपीज से स्टार्ट करके 300-400 रुपीज पर बोतल तक के डिकम्पोजर बाजार के लिए अंदर अवेलेबल। त्रिनेत्र जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि बैक्टीरिया से बना हुआ है और ये जो बैक्टीरिया है वो जमीन से आइसोलेट किए गए, मीन्स जो भी इसका काम करने वाले बैक्टीरिया से, तो एक बैक्टीरिया का समूह है और ये जमीन से आइसोलेट किए गए हैं इसलिए कोई भी फसल को या खड़ी वाली प्लांट्स है उसको डैमेज नहीं कर रहे हैं। और इसका काम ये है कि ये जिसके जब भी हम इसको किसी भी मटेरियल जो कि डिकम्पोस्टेबल है, मीन्स जो सड़ सकता है और जिसके अंदर कार्बन अणु है उसको डिकम्पोज करके उसका कार्बन रिलीज करके उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए ये डिकम्पोजर हमने दिया है। ये संपूर्ण रूप से ये नेचुरल स्रोतों से ही बना है, इसमें कोई सिंथेटिक केमिकल या कोई ऐसा नहीं है और ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है और एनिमल्स के लिए भी कुछ डैमेज नहीं करता। अगर इसके गुणों की बात करें तो इसका डोज एकदम कम है, या हम बता सकते हैं कि 50 ग्राम प्रति मीट्रिक टन ऑफ मैन्यूर है। एकदम से छोटी साइज में पैकेट आ रहा है और 50 ग्राम का पैकेट अगर जेब में भी डाल के जा सकते हैं तो एकदम से छोटा सा पैकेट है और छोटा डोज होने के बावजूद भी उसका काम बड़ा मिल रहा है, कहीं पे भी रखा जा सकता है और इसका वपराश दूसरे डिकम्पोजर के जैसे मल्टीप्लाई करना, पानी में घोलना, गुड़ के साथ लगाना, बैरल में 2-3 दिन रखना, ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसका यूज इमीडिएटली कर सकते हैं। इसका कॉस्टिंग पर प्रति पैकेट 75 रुपीज ओनली है, तो ये बाजार में मिलने वाले 1-2 डिकम्पोजर को बात करके बाकी सबसे ये सस्ता है। और जो सस्ते वाले हैं उससे भी सस्ता इसलिए है कि जो सस्ते वाले हैं उनमें 2 किलो गुड़ या फिर आटा या ऐसा कुछ चीजें हमको डालनी पड़ती है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के सोर्स के लिए, तो हमको ये चीजें भी नहीं डालनी है त्रिनेत्र के अंदर। वो चीज हमने ऑलरेडी शुगर का बेस उसको डेक्सट्रोज ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमने
साथ में दिया हुआ है, इसलिए बाहर का गुड़ ऐसा कुछ देने की भी जरूरत नहीं है। काम की बात करें तो जो दूसरे डिकम्पोजर 1.5 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर जो भी काम कर रहा है, तो त्रिनेत्र का काम एकदम फास्ट है और ये लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर ये काम कर देता है। तो इसका स्पीड भी काम करने का एकदम फास्ट है। आगे जैसे बताया कि कोई लेबोरियस इंक्यूबेशन इसके लिए नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस या गुड़ में डालना या बैरल में मल्टीप्लाई करना, इसकी जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा टाइप के लिए त्रिनेत्र का वपराश किया जा सकता है और ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए कंट्रोल यूनियन से। जब हम त्रिनेत्र का यूज कर रहे हैं तो इससे बनने वाली खाद एकदम से अच्छी बन रही है। इसके अंदर जब ये खाद बना के कोई भी पराली है या फिर फार्मयार्ड मेन्यूर है या फिर पोल्ट्री मेन्यूर है या सेरिकल्चर वेस्ट से बना मेन्यूर कुछ भी है, तो इसका क्वालिटी एकदम बढ़िया रहता है, जो कि बाजार में अवेलेबल फार्मयार्ड मेन्यूर से भी अच्छा बन रहा है। ये फर्टिलाइजर जो हमने त्रिनेत्र से तैयार किया हो, वो जो हम फार्म में देते हैं तो एकदम से कम रोग अगली फसल को आते हैं, पेस्ट भी कम आते हैं। उसका रीजन ये है कि जब कार्बन थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो प्लांट की हेल्थ ही अच्छी हो जाती है। दूसरा वीडीसाइड एप्लीकेशन और वीड जर्मिनेशन का इश्यू कम रहता है, क्योंकि जब ये डोरमेंट वीड सीड पड़े होते हैं जमीन के अंदर, उसको भी पाउडर में कन्वर्ट करके इनएक्टिव कर देता है, तो कि नेक्स्ट सीजन में आपका वीडीसाइड एप्लीकेशन भी कम रहता है। हाई कार्बन रेशियो, ये कार्बन का रेशियो बढ़ाता है और जब अगली फसल या फिर खड़ी फसल में हम इसको अप्लाई कर देते तो भी उसका कार्बन रेशियो में काम करके उसका भी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करके उसमें डिजीज और पेस्ट कम आने देता है। जब किसी बियारण या के ऊपर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उससे भी पूरा जर्मिनेशन और ग्रोथ अच्छी मिल रही है। उसके त्रिनेत्र के वपराश से अगर हम इसके साथ में और कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलस, मेटारिजियम ऐसा कुछ भी डाल रहे हैं या फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटास के बैक्टीरिया या कंसोर्सिया डाल रहे हैं, तो उन सारे जीवों को या उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को भी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात जो कि आजकल के बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए है कि जब भी कोई आप एनपीके फर्टिलाइजर या बायोलॉजिकल एजेंट जमीन में या स्प्रे के अंदर देते हैं तो आपको 2 दिन से लेकर 10 दिन तक वेटिंग पीरियड रखना पड़ता है, ताकि जो भी आपने ऑर्गेनिज्म जमीन में फसल पे डाले हैं तो उसका वपराश, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से आए और वो मर नहीं जाए दूसरे एप्लीकेशन के बाद। तो त्रिनेत्र के लिए ये इश्यू है ही नहीं। जब आप त्रिनेत्र का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। वो फर्टिलाइजर या अदर एग्रोकेमिकल्स कोई अगर नॉर्मल फार्मिंग भी कर रहा है तो सेम टैंक में फर्टिलाइजर के साथ चला जा सकता है। रीजन बीइंग के वो जो बैक्टीरिया है वो सारे लायोफिलाइज्ड एंड एनकैप्सुलेशन फॉर्म में है, कि जिससे फर्टिलाइजर के साथ देने में या फिर कोई भी केमिकल के साथ देने में या फिर जीरो बजट वाले कोई भी सॉल्यूशन जो भी हम दे रहे हैं 10 वर्णीय ये स्लरी ऐसा कुछ, तो उसका परफॉर्मेंस उस प्रोडक्ट का भी डिस्टर्ब नहीं होता है और त्रिनेत्र का भी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होता है। एप्लीकेशन के लिए अगर बात करें तो त्रिनेत्र के काफ़ी सारे एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए जैसे बात करें तो फार्म रेसिड्यू बर्निंग, सोइल रिक्लेमेशन के लिए, स्लरी और जीवामृत बनाने के लिए, फार्म यार्ड मेन्यू बनाने के लिए, तो ये मेजर एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए देखें तो सारे जो भी फूड एंड जूस इंडस्ट्रीज है, तो जो भी पल्प एंड वेस्ट वो निकल रहा है उसको मेन्यूर में कन्वर्ट करके हम लोग अच्छा सा मेन्यूर बना सकते हैं। दूसरा एक स्कोप है सिटी वेस्ट मैनेजमेंट का, और काफ़ी अलग भी यूजेज हम इसके कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए जो भी यूज है चारों, उसको हम थोड़ा डिटेल में अभी समझ रहे हैं। फार्म रेसिड्यू बर्निंग की अगर बात करें, जो कि अभी टाइम है अक्टूबर नवंबर महीने का, तो जो 50
15 लीटर टैंक आती है फार्मर का स्प्रे के लिए, उसमें 50 ग्राम त्रिनेत्र लेके 1 एकड़ में 8 पंप, मतलब कि 400 ग्राम प्रति एकड़ आपको जमीन के ऊपर स्प्रे कर देना है और रोटावेटर चला के पानी पिला देना है। स्कोप के लिए बात करें तो 73 मिलियन हेक्टर ग्रेन्स, मतलब कि 7.3 करोड़ हेक्टर ग्रेन हमारे इंडिया में बोया जा रहा है, और इसमें से लगभग 70% से भी ज्यादा, मीन्स 5 करोड़ हेक्टर से भी ज्यादा ये फसल जलाई जा रही है। अगर ये जलना कम हो गया तो कितने प्रोडक्ट्स पोल्यूशन हम कम कर रहे हैं, ये आप गिन नहीं सकते, ये जब बड़े फिगर में आए। तो ये एक बड़ा सा स्कोप है त्रिनेत्र के वपराश के लिए कि जब इसको हमने स्प्रे के साथ फसल अवशेषों के ऊपर जब स्प्रे कर दिया है तो, और रोटावेटर चला के पानी दे दिया है, तो अगले 20 से 25 दिनों में पूरा का पूरा जो भी फसल के अवशेष है वो मिट्टी में मिल के पाउडर के फॉर्म में अगली फसल के न्यूट्रिशन बन के रेडी हो जा रहा है, और फार्मर को फसल जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। दूसरा जो प्रॉब्लम हमने बड़ा से डिस्क्राइब किया है, सोइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। आज की डेट में अगर हम देखें तो 96.4 मिलियन हेक्टेयर पूरे भारत का जमीन है जो कि फसल के लिए यूज हो रहा है, और इस पर एस्टिमेट्स लगभग 29% ऑफ टोटल एरिया ये जो ऐसी कगार पे खड़ी है कि अगले 2 या 10 साल के अंदर प्रोडक्शन छोड़ देगी, या तो खराब हो गई है या तो होने वाली। इसका सबसे बड़ा रीजन जैसे हमने किया है, बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 के बाद जो भी आया है, तो ये फर्टिलाइजर और केमिकल के यूज की वजह से इसको बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिस्टर्ब हुआ है, और जो भी फर्टिलाइजर हमने यूज किए हैं वो जैसे यूज हुए नहीं है, वो पूरे बाइंड होकर जमीन में वहीं के वहीं पड़े हैं और जमीन को एकदम खराब कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसका रीजन है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे फार्म यार्ड मैन्यूर हो गया, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप हो गए, इसकी भी कम यूजेस हमने किया है। हमने सोचा है कि काफ़ी केमिकल्स मिल रहा है, रेडी टू यूज है, यूरिया है, डीएपी है और अदर केमिकल्स है, तो इमीडिएटली फार्मर दे देता है, और लंबी सोच के अभाव में ये पूरा ये सीनेरियो हमको देखने मिला है कि आज के दिन की 30% सोइल जो कि खराब होने की कगार पे खड़ी है। और दूसरा एक रीजन है माइक्रोफ्लोरा ऑफ सोइल डिस्टर्बेंस, तो ये भी हमने जीवाणु भी खत्म कर दिए जहर दे दे के, और जैसे अर्बन डेवलपमेंट शहरीकरण का विकास होता गया तो जमीन में से पेड़ की संख्या कम होती गई, तो ये भी एक बड़ा सा रीजन है। इसके लिए भी हम लोग त्रिनेत्र का यूज कर सकते हैं, चाहे वो खड़ी फसल के साथ करना है या फिर डायरेक्टली सोइल ट्रीटमेंट के लिए करना है, दोनों के लिए कर सकते हैं। और जो भी सोइल के लिए जरूरी माइक्रोब्स है ये बिल्डअप कर देने का काम देता है, और जो भी बाइंड हुए फर्टिलाइजर्स है उसको रिलीज करके जमीन की परत अच्छी बनाने का काम त्रिनेत्र कर रहा है। दूसरा एक यूजेस जैसे हमने बताया कि जीरो बजट फार्मिंग के लिए, तो आज के दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग या प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो भी हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ा यूजेस है स्लरी मेकिंग, जिसमें गोबर, गौमूत्र, गुड़, आटा, जगेरी ये सब मिला के हम स्लरी बना रहे हैं और न्यूट्रिशन के रूप में उसको फसल को दे रहे हैं। तो जब हम त्रिनेत्र का यूज इसके लिए कर रहे हैं, तो जैसे हम 200 लीटर ड्रम में बना रहे हैं, तो ये ड्रम में जब बनाते टाइम फार्मर को चेंज खाली इतना ही करना है कि त्रिनेत्र का एक पैकेट इस बैरल के लिए 50 ग्राम का यूज करना है। अगले 20 दिनों में फार्मर को ये मिल रहा है कि पूरा का पूरा जो भी ये लिक्विड है, स्लरी है, एकदम से डाइजेस्ट होके मिल रहा है, और 2 किलो से ज्यादा प्रति बैरल सॉलिड वेस्ट नहीं निकल रहा है। मतलब उसने जो भी डाला है, गोबर, काउ यूरिन, जगेरी, फ्लोर, ये सब, तो ये सब का एकदम से यूटिलाइज होके एकदम मस्त स्लरी बन के आ रहा है।
अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये स्लरी बनाने का प्रोसेस ऐसा है कि ये स्लरी बनाते हैं 10 दिन के बाद ऊपर से पूरा पानी निकाल के नीचे जो भी सॉलिड मटेरियल रहता है उसको 2 बार 3 बार और सड़ाने के लिए लिक्विड बैरल में रखना पड़ता है। तो ये इश्यू जब त्रिनेत्र के साथ यूज किया है तो एक इश्यू होता ही नहीं है। विद इन 10-10 डेज आप पूरा का पूरा बैरल डाइजेशन के साथ अच्छी क्वालिटी का पा सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने बात किया तो दूसरे टाइप के अर्क बना रहे हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट से इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, लाइक अग्निअस्त्र, नीमास्त्र, बीजामृत तैयार कर रहे हैं, या कोई भी केक का स्लरी बना रहे हैं, लगभग कॉटन केक, पेस्टर केक, नीम केक या माइक्रोन्यूट्रिएंट स्लरी जो भी बना रहे हैं, तो सारे के सारे स्लरी के साथ त्रिनेत्र का यूज किया जा सकता है। और ये करने के लिए द फार्मर को खाली 50 ग्राम का एक पैकेट त्रिनेत्र इस बैरल में ऐड करना है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट एज पर रहने देना है। रिजल्ट की अगर बात करें, दूसरा एक एप्लीकेशन जो हमने बताया फार्म यार्ड मेन्यू प्रिपरेशन, तो नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन में 512 मिलियन केटल्स भारत के अंदर है पॉपुलेशन, मीन्स 51 करोड़ केटल का पॉपुलेशन है। और पूरा जो भी वेस्ट अगर हम एस्टिमेट करें तो 1095 मतलब करीब करीब 1100 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट खाली एनिमल से ही हो रहा है। और अगर इसका यूटिलाइजेशन हम करें तो फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया और डीएपी का वपराश लगभग 10 से 15% तक कम कर सकते हैं आराम से। यही सारे फार्मर के फार्म पे ये चीजें ऑलरेडी होती है और सारा वेस्ट वो या तो फेंक देते हैं या तो किसी को सस्ते भाव में बेच देते हैं। अगर बेच भी रहे तो खाली त्रिनेत्र का ट्रीटमेंट करने के बाद एकदम जो भी अंदर के फसल अवशेष है या फिर एनिमल के अवशेष है वो एकदम से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं विद इन 1 मंथ पीरियड ऑफ टाइम। और इसका डोजेज है खाली 50 ग्राम प्रति मेट्रिक टन ऑफ मेन्यू। आपको सिंपली ऐसा करना है कि एक बाल्टी में ये पैकेट को घोलकर जो आपका हीप है उसके ऊपर छिड़क देना है और पानी दे देना है, और 10 दिन के बाद वापस एक बार पानी दे देना है। ये देने के बाद आपका 1 महीने में आप एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का मैन्योर मिल रहा है। एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर यूजेस जैसे हमने बात की, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी है, फूड फैक्ट्री का, जूस फैक्ट्री का, तो उसका भी कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। हमारे घर पे भी अभी काफी सारे सिटी में ऐसा थोड़ा देखने को मिला है कि लोग किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट के ऊपर चले गए हैं। तो किचन गार्डन है या नहीं है तो भी हम लोग जो भी हमारा डेली का किचन वेस्ट निकलता है सब्जी का या फिर फूड का, उसको भी मेन्यूर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। और दूसरा एक एप्लीकेशन है सेटी कंपोस्ट। ये काफी बड़ा इश्यू है। भारत के अंदर लगभग 277 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट हर साल में प्रोड्यूस हो रहा है, और प्रतिदिन के हिसाब से गिनने जाए तो लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर दिन का 1.5 लाख मेट्रिक टन कचरा हम लोग बना रहे हैं, और उससे खाली 15,000 से 20,000 मेट्रिक टन को ही हम ट्रीट कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े सिटीज में रिसाइकलिंग प्लांट लगे हुए उसमें। बाकी का 1,30,000 लाख मेट्रिक टन जो भी कचरा है उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा सिटी कंपोस्ट वाला कंपनी है उसके लिए भी बड़ा एक स्कोप है कि ये कचरा को यूज करके हम लोग एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, और इसको वेस्ट के रूप में न देखकर एक वेल्थ क्रिएशन का सोर्स देख के एक वेल्थ जनरेशन प्रॉपर्टी बन सकता है। त्रिनेत्र का वपराश की बात करें तो अलग अलग रूप के अंदर हम उसको कर सकते हैं। जमीन के ऊपर पंप से छिड़काव करके पानी के साथ देके, या फिर सोइल के साथ मिला के
जमीन के ऊपर छिड़कने के लिए दे सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। हमने ट्रायल किया हुआ है और उसके भी रिजल्ट काफी प्रॉमिसिंग मिले हैं। दूसरा एक त्रिनेत्र का जो यूजेस है कि खड़ी फसल में वपराश, जो भी हमारे यहाँ पे कॉमर्शियल फसल है, आलू, ग्राउंडनट, क्यूमिन, कोरिएंडर, चना, वीट, ये सब, उसके लिए त्रिनेत्र का उपयोग हमने ट्रायल किए हैं और काफी सारे अच्छे फीडबैक भी पाए हैं और फार्मर से भी काफी सारे अच्छे फीडबैक पाए हैं। खाली 100 ग्राम प्रति एकड़ को ट्रीटमेंट हम जब कर रहे हैं पानी के साथ, खड़ी फसल में बुआई करने के 1 वीक या 2 वीक के बाद, तो फसल का ग्रोथ एकदम से अच्छा आ रहा है। जो भी अगले सीजन के रेसिड्यूज है उसके एकदम गल जाने के बाद पाउडर होने का, पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो भी न्यूट्रिशन जमीन का है उसको अच्छा सा मिल रहा है और डिजीज एंड पेस्ट भी कम आ रहा है और कार्बन रेशियो बढ़ा रहा है। अगर हम भारत के टोटल इरिगेटेड क्रॉप एरिया की बात करें तो अराउंड 96 मिलियन हेक्टर जमीन है जो कि जिसमें फसल हो रही है। और अगर हम अच्छी फसल अच्छे कार्बन रेशियो के साथ कम लागत में कम डिजीज या पेस्ट के साथ लेके आ रहे हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट है। ये सारे फोटोग्राफ्स हमारे ही ट्रायल किए गए हुए हैं। ग्राउंड नट के अंदर अच्छे रिजल्ट है सारे फसल के लिए, पोटैटो, क्यूमिन, कोरिएंडर, चिकपी, इस सब फसल के अंदर हमारे त्रिनेत्र का यूज हो रहा है और वेरी गुड फीडबैक हम पा रहे हैं। तो अगर हम त्रिनेत्र के लिए अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फार्म यार्ड मेन्यू हमारे खुद के लिए यानी कि फार्मर के खुद के लिए या फिर बेचने के लिए बनाता है। जीरो बजट फार्मिंग में स्लरी, जीवामृत एंड अदर जो भी नेचुरल फार्मिंग है उसके लिए कर सकते हैं। एनिमल रेसिड्यू जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, सेरिकल्चर वेस्ट हो गया, ये अपना हनी बी का वेस्ट हो गया, तो उसको भी एक पाउडर में कन्वर्ट करके उसका भी कॉमर्शियल यूजेस हम ले सकते हैं, मेन्यूर के रूप में बेच के। फूड एंड इंडस्ट्रीज के वेस्ट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और सिटी कंपोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे फार्मर्स फीडबैक है जो कि हमने हाईलाइट किए हैं त्रिनेत्र बेनिफिट्स के लिए। ये सेम हमने फार्मर की ओर से भी ये सारी चीज पाई हुई। वीडियोस भी काफी सारे हैं हमारे लिए, हमारे पास अवेलेबल, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं। त्रिनेत्र की अगर बात करें तो ये सेम प्रोडक्ट हमारा इनोवेशन के दौर पे अग्नि प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत किया गया है, ये प्रोडक्ट उसके लिए भी रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। और हमें बताते हुए ये एक खुशी हो रही है कि ये प्रोडक्ट उसमें लिस्टेड हुआ है और इसमें शोकेस किया गया है अग्नि की ओर से। दूसरा एक अचीवमेंट हमारा ये है कि ये यूनेस्को का एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और FSADD प्रोग्राम एक चला रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे स्टार्टअप या फिर ऐसी कंपनियों को लिया जा रहा है जो कि कार्बन का यूजेस कम या घटा रहे हैं या फिर कार्बन का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो उसके जो भी 22 फाइनलिस्ट लास्ट वीक में डिक्लेयर हुए, इसमें हमारा ग्रीन क्रू सेक्रेटेक का त्रिनेत्र के लिए भी हम पसंद हुए। तो ये सारे त्रिनेत्र के लिए हमने चर्चा की है। इसके लिए अगर किसी को क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए हाईलाइट में थोड़ा दे रहे हैं कि हमारा और प्रोडक्ट है वो क्या काम कर रहे हैं। Sir, it would be helpful if you continue with all the products and we'll take question answers later. ओके, नो इश्यू। Right? तो त्रिनेत्र के लिए हमने पूरी ये बात कर दी है। अदर प्रोडक्ट्स के लिए देखें कि जैसे फसल जमीन की परत सुधारने के लिए तो हम लोग एक ऑर्गेनिक कंडीशनर लेके आए हुए हैं जो कि न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी का काम देता है। और ये पूरा का पूरा हर्बल प्रोडक्ट्स है, 1 लीटर प्रति एकड़ का इसका डोज है। और ये आपकी जो जमीन है उसमें जीवाणुओं का संख्या, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी और सोइल की प्रॉपर्टीज को बदलने का काम कर रहा है।
आप फार्मर्स लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो फसल पे इमीडिएटली फर्क दिख जा रहा है, लेकिन जमीन में फर्क नहीं दिख रहा है। तो ये सोइल कंडीशनर है जो कि जमीन की परत को सुधारने का काम कर रहा है। तो हमारा ये दोनों चीजें त्रिनेत्र एंड मृदा जीवन कॉम्बिनेशन में जब देते हैं तो न्यूट्रिशन का भी काम हो जा रहा है एंड सोइल इम्प्रूवमेंट और कार्बन रेशियो सबका काम साथ में हो जा रहा है। तो ये पेड़ है मृदा जीवन एंड त्रिनेत्र दोनों को साथ में देने के लिए ये 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन में दिया जा सकता है और पूरा हर्बल फॉर्मुलेशन होने के कारण इसकी कोई भी साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट जमीन के ऊपर या फसल के ऊपर नहीं आ रही। हम लोग देख सकते हैं कि जो भी ये मृदा जीवन ट्रीटेड सोइल है वो अगले 15 दिनों में एकदम खुरदरी हुई है, मॉइस्चर ज्यादा पकड़ रहा है, रूट डेवलपमेंट अच्छा सा और बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा जमीन पे देखने को मिल रही है और जमीन इतनी सॉफ्ट हो रही है कि जब हम उसके ऊपर चल रहे हैं तो हमारे पेट पे भी निशान पड़ रहे हैं। मतलब कि जो भी उसके क्षार है वो एकदम से सोल्यूबल होके अगली फसल को न्यूट्रिशन के रूप में मिलने लगे हैं और फसल का ग्रोथ अच्छे से आ रहा है। दूसरे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये नैनो टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट हम लेके आए हुए हैं। हाइब्रिड टोनिक हम बोल सकते हैं उसको, इसीलिए हाई टोनिक नाम रखा गया है। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि पौधे को प्रतिकारक शक्ति 2 से 5 गुना तक बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये नैनो पार्टिकल की एवरेज साइज 30 नैनोमीटर है और जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर आने वाले डिजीज या पेस्ट ऐसे जो भी कोई डैमेज है वो पौधा ऐसा खुद हेल्दी हो जा रहा है कि वो फसल के डैमेज को वो चाहे इंसेक्ट से हो या फंगस से वो झेल लेता है और उसके सामने प्रतिकारक क्षमता डेवलप कर लेता है। तो प्रतिकारक शक्ति की अगर बात करें तो हमने पिछले 1.5-2 सालों में काफी प्रतिकारक शक्ति के लिए सुना हुआ है हमारे खुद के लिए। तो ये जो चीज है वो पौधों की प्रतिकारक शक्ति डेवलप करने के लिए हमने लाया हुआ है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्लांट की हेल्थ ही अच्छी हो जाएगी तो प्रोडक्शन तक वो एकदम से अच्छा सा ही परफॉर्मेंस देगा। तो चाहे वो फ्लावरिंग में हो, फ्रूट क्वालिटी हो, साइज हो, क्लोरोफिल कंटेंट हो, सेल डिवीजन हो या फ्रूट सेटिंग मैच्योरिटी, ये सारे फैक्टर्स में पौधा अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। क्वालिटी डिफरेंस भी हम देख सकते हैं। डिफेंस के लिए जैसे बात किया तो ये एक एरिया फार्मर्स ट्रीटेड डेमोस्ट्रेशन प्लॉट वाला है हड़वद डिस्ट्रिक्ट के पास में, जहाँ पे हमने स्प्रे लगाया था। तो स्प्रे के 1 महीने के बाद भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 2 बजे के दिन के तापमान के ऊपर ये पौधे मुरझा रहे हैं और लेफ्ट साइड के पौधे मुरझा नहीं रहे। ये डिफेंस एक्टिवेशन का काम है कि पौधा कोई भी एडवर्स इफेक्ट है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, नमी कम होना या फिर नमी ज्यादा होना या फिर स्ट्रेस, तो इसके सामने पौधे का डिफेंस एक्टिवेशन इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वो खुद सस्टेन हो जा रहा है। दूसरा ये हाइड्रोनिक प्लस का एक एप्लीकेशन ये है नेमेटोड मैनेजमेंट के लिए। 500 ml पर एकड़ जब हम दे देते हैं तो नेमेटोड जो भी रहते हैं जमीन के अंदर जो रूट में डैमेज करने का काम कर रहे हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे प्लांट में ये मटेरियल फैल जा रहा है और जो भी नेमेटोड के कॉलोनीज है उसको डाइजेस्ट करके प्लांट को नए नेमेटोड के कॉलोनीज को खत्म कर रहा है और नए रूट दे रहा है, जिससे पौधे के ऊपर से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इवन अभी तक जो बाजार में नेमेटिसाइड्स अवेलेबल है वो केमिकल रूप में और ओनली प्रिवेंटिव यूजेस के लिए दिए जा रहे हैं, मतलब कि डिजीज या पेस्ट आने के पहले, जबकि हम लोग ये दे रहे हैं पेस्ट आने के बाद भी हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोडक्ट फूड ग्रेड मटेरियल से 0 पॉइजन इनपुट से बनाया है और इसको खाया भी जा सकता है, ये 0 डैमेजिंग है। दूसरा एक यूजेस है जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वाइट ग्रब्स। ग्राउंड नट के अंदर, ऑनियन के अंदर, शुगर केन, मेज, ये सारे क्रॉप में इतना डिमिनिश है वाइट ग्रब का कि ये फसल को
एक दो दिन में ही लगभग 10 से लेके 20% तक नीचे के रूट काट के खत्म कर दे रहे हैं। तो इसका मैनेजमेंट के लिए भी हमारा इंडस्ट्री रिपोर्ट बता सकता है कि इसके मैनेजमेंट के लिए कोई भी फार्मर जब भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी केमिकल का स्प्रे कर रहा है तो इसके लिए खाली हाइड्रोनिक को ऐड ही करने का है, जो कि एंटीफिडेंट एक्टिविटी के काम में आता है। और जब तक ये डैमेजिंग इंसेक्ट मरते नहीं तब तक नेक्स्ट बाइट नहीं करने देने के काम में आता है, जिससे जो भी इंसेक्ट है डैमेजिंग टाइप में वो स्टारवेशन से मरने का काम हम इससे ले रहे हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट है हर्बल। ये मिनरल ऑयल कंटेनिंग प्रोडक्ट है जो लाइट लिक्विड पैराफिन से बनाया है। इसका काम ये है कि जो भी फसल के ऊपर एक पतला सा लेमिनेशन लेयर क्रिएट कर रहा है, जो कि अगले 15 से लेके 20 दिन के बाद वो हवा में डाइल्यूट होके उड़ जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सनबर्निंग नहीं आने दे रहा है, बैक्टीरिया फंगस ऐसे जीवाणु की एंट्री फूल और पत्तों के ऊपर नहीं आ रहा है, और जो भी हम लोग केमिकल्स या ऑर्गेनिक केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के लंबे समय तक पौधे के ऊपर इसको पकड़ के रखने का काम दे रहा है। ग्रीन क्रॉस उजास जो है वो हर्बल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, जो कि हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ है, और इसका 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में डोजेस है। इसका नॉर्मल फसल की विकास के लिए दे सकते हैं। ग्रीन क्रॉस त्रिशूल एक 7 जात के हर्बल ऑयल से बनाया हुआ एक मिक्सचर है, जो कि एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। ये अभी तक का एक हमारा अच्छा प्रोडक्ट है जो कि 3-in-1 काम देता है। इसका एक कंपोनेंट बेसिल 10 है, जो कि आपका फीमेल फ्लावर लाने में, फ्रूट सेटिंग लाने में काम में आ रहा है। दूसरा इसका फंक्शन है कि जो भी हनी बीज टाइप के मित्र जीवाणु है उसको अट्रैक्ट करने का काम दे रहा है, और सेम टाइम पे जो भी डैमेजिंग इंसेक्ट है लाइक थ्रिप्स, एफिड जैसी माइट्स, इन सबको पौधों से दूर भगाने का काम दे रहा है। और दूसरे पौधों के जो एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर वो आपको फंगस और बैक्टीरिया जिससे रोग होता है इसके बचाव के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ही प्रोडक्ट में आपका ग्रोथ फ्लावरिंग हो गया, इंसेक्ट मैनेजमेंट हो गया और रोग मैनेजमेंट। तो 3-in-1 प्रोडक्ट बता सकते हैं, और इसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने के लिए इसकी रिकमेंडेशन हमने की हुई है। श्रीरंग एक नया सा सेगमेंट इसके लिए हमने बनाया है, फल का कलर लाने वाला फ्रूट कलर इंड्यूसर। ये जंगली पौधों के अर्क से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि पौधों में साइज, शाइनिंग, कलर, वजन और स्वीटनेस लाने के काम में दे रहा है। जब भी कोई किसी भी क्रॉप के ऊपर हम लोग इसका स्प्रे दे रहे हैं, लाइक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो अंदर से बाहर कलर लाने के लिए काम देता है। उसको फोटोसिंथेसिस साइकिल को अल्टर करके जिस क्रॉप के ऊपर भी हम देते हैं उसको कलर लेके आने का काम करता है। फल पाक के लिए इसका डोजेज 1 लीटर पानी के लिए 2.5 ml है, और 1 महीने से पहले, जब हार्वेस्टिंग के 1 महीने पहले इसका यूजेस हम रिकमेंड कर रहे हैं। ये डेट पाम में रिजल्ट है, लगभग 20 दिन अर्ली मैच्योरिटी आया हुआ है, और सेम ही पेड़ के दोनों बंच है जहाँ जिस पे स्प्रे किया गया है वो 20 दिन अर्ली मैच्योर हो गए। अगर वेजिटेबल के लिए बात करें तो टोमेटो या फिर कोई भी वेजिटेबल है, ब्रिंजल या एनी अदर जिसमें कलर आ रहा है, तो फसल कटाई से 5 दिन पहले खाली स्प्रे देना है। फ्रूट क्वालिटी को बिगाड़े बिना ये कलर इंड्यूस कर देता है और स्वीटनेस इंड्यूस कर देता है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे रेंज हैं जो कि कंट्रोल यूनियन से सर्टिफाइड किए गए हैं एज ऑर्गेनिक इनपुट। ये कुछ फोटोज है हमारे फील्ड वर्क के। तो यहाँ पे हम ये इंफॉर्मेशन हमारा पूरा करते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल यह है तो आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चन। Okay, any doubts regarding, if you don't understand anything, please you can ask.
if there are no doubts and you appreciate product, then even you can speak up. I would like to add that this person and the company Green Cross is also ready for any kind of white label manufacturing, and he's also ready for traders for this thing, distributors. So any person or friends or families around you, if anybody's interested in doing this business, we welcome. And any queries in this regard would also be addressed. हेलो। Yes. हाँ जयेश जी, Yes. मैं जबलपुर से डॉक्टर CS पांडे बोल रहा हूँ। Yes, yes, sir. ये आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या जबलपुर में है? नहीं सर, राइट नाउ नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि अगले अप्रैल से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करके वहाँ पे एंटर हो रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये पूछना था, जो आपके प्रोडक्ट है इनकी कोई साइंटिफिक वैलिडेशन हुए हैं? ये सर हम लोग वर्क कर रहे हैं ये मेडीहब TBI के साथ में वैलिडेट करवाने के लिए। अभी तक हम लोग मार्केट में ही हैं और किसी इंस्टीट्यूट से वैलिडेशन हुआ नहीं है, तो हाँ। अभी तो ये 3 महीने में ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताई है उसका वैलिडेशन के साथ हम आपको दे सकते हैं। तो उसमें ऐसा है सर कि मार्केट में उन्होंने बहुत सक्सेस देखा, और ये कुछ एक आध साल की बात नहीं है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, पर ये वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन वगैरह जो चीजें हैं उसी के लिए वो इंक्यूबेट हुए हमारे साथ। नहीं, दिस इज द गुड एक्टिविटीज and I am hopeful that this will helpful to the farmers as well as among the other producing community. हाँ, very true sir, Yes, yes, very true. definitely it will be helpful to farmers. I think this product is now getting popularity in Ahmedabad area. Yes, yes, we are working in Gujarat and we are getting good mileage in Kutch area and North Gujarat and Saurashtra. ओके ओके ओके, बहुत अच्छा काम है जयेश जी। और ये ऑर्गेनिक को तो ऐसे भी प्रमोट करना है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ऐसे भी ऑर्गेनिक का एरिया वाइज बहुत ज्यादा एक्रेज है। तो अभी हम लोगों के यहाँ बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट ये सब मैक्सिमम यूज हो रहे हैं। लेकिन अब ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपके हैं या इस तरह का रिकमेंडेशन है बिना वैलिडेशन के, उसको अभी ये अलाउ नहीं करती लोग। नहीं सर, अगर आप चाहे तो ट्रायल बेसिस पे भी करवा सकते हैं, हम लोग आपको मटेरियल भेज देंगे ट्रायल के लिए। आप अच्छा, जो भी ट्रायल करना चाहे अपने खुद के लिए या फिर इंस्टीट्यूशनल, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग तो इन प्रोसेस है ही कि हम लोग वैलिडेशन के साथ में दे देंगे कि ये प्रोडक्ट वैलिडेटेड बाय दिस एंड दिस इंस्टीट्यूट। नहीं, बहुत ही अच्छा है ये। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। और एक मैसेज है, आई वांट टू सी ऑल द प्रोडक्ट लिस्ट विथ डिस्क्रिप्शन। तो सर वो स्लाइड लगा दीजिए, थैंक्स के ऊपर वाला। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ग्रीन ग्रो सेक्रेटेक के, जो कि बाजार में हम लोग दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और सब प्रोडक्ट का डिटेल्स हमारे वेबसाइट है www.greengrowsecretech.com, इसके ऊपर मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पे मैसेज में दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में लिख दीजिए और अपना कांटेक्ट डिटेल्स भी दे दीजिए जयेश सर। यस सर। मैंने डिटेल शेयर कर दिया है, किसी को अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो पर्सनली कांटेक्ट करके ले सकते हैं। किसी को कुछ लैंग्वेज बैरियर जैसा लगा हो तो भी पूछ सकते हैं, वी कैन एड्रेस दोस क्वेरीज एज वेल। You can stop sharing, Jayesh bhai. Yes, yes.
Okay, in that case, I'll take over, and as always, I'll be explaining the MediHub incubation and little bit insight about how we support to the budding entrepreneurs and entrepreneurs like Mr. Jayesh Raninga to, for validation and all the compliances, and finally to scale up the business. So here I'm Dr. Deepa Patel, and I have done my doctorate from management faculty, and that's how I'm here. I'm doing a job of business manager for this incubation center, and today I would be briefing about incubation support, what we provide, and how we do that. So my presentation flow goes like this, that what are medicinal plant and aromatic plant business segments to look upon for business opportunity, and then how an incubation center works, and how it helps out a new incubity, and what we do actually, and what handholding kind of things are done from MediHub TBI. So first of all, as we know, and due to COVID situations are, resurgence has been seen in medicinal and aromatic plant sector, and overall herbal segment has seen a boom. Before that also, we have seen that about 80% of primary healthcare needs are being addressed from herbal medicines on global level, and there is a growing demand for medicinal plants and their products in the country, as well as in the international market. Also, the awareness and demand for herbal drugs are booming and flourishing day by day, and of course it is a sunrising sector, and it promises a bright future. MAPs are not only important for healthcare system, but also important to boost economy, and can impart a significant role in economic development. We can see such initiation, the thing which we have talked today, that organic biopesticide kind of thing. So that also helps in environment, right? So that's how it is going to develop an economy, and it is going to help environment. It is going to help all the human generation, I must say. Again, if we see the different segments for medicinal and aromatic plants, we can see that apart from traditional way of cultivation, value addition is the another thing. And if we see that, first of all, the one segment to tap is aromatic and medicinal plant cultivation in and all, and to supply that farm produce as raw material. Again, the value added products are herbal ice cream and herbal milk, herbal beverages, and market is, these days flooded with these things, and people are demanding, the demand for these things are increasing day by day. Herbal chocolates, herbal cosmetics, nutraceuticals, different kind of herbal baby products, and the list goes on. I mean, today, if we talk about smartphone, everything is like, people want appified. If you want an AC to be operated, people want app for that. If you want a light to be operated, if you're walking, people want app for how many steps have been walked. If you're breathing, people want app for how many oxygen in your body is there, right? So there should be app for everything. In the same fashion, people want herbal things and herbal products in the market for each and everything. If you call household products, even like, floor cleaning thing, people are demanding herbal these days. If you talk about themselves, their babies, their clothes, even herbal curtains are coming into market these days, right? So this is the situation and scenario we are into right now. Now, if we talk about, I would request everyone to switch off their mic, please. Please mute yourself. If we talk about pros and cons, like in what fashion a business incubator can help.
Dr. R. Sangha. Okay, I have muted him. Again, pros of business incubators. We can help you, and or any incubation center can help you to save on rents, right? Because they in benchmark fee they provide you office spaces and the promotional things, and you can save on so many rent if you are showcasing into some expos. Again, your rent on that expos are coming down, cost is coming down. So in so many fashions you can save on rent. We can help you find fund for your business for initial phases and to scale up as well. You can learn and grow with us, improve your focus, and you can network with a like mind of people who are also startups and passionate about the business. So that's the key of networking, can help you in your business. And next is that how MediHub TBI works in this zone is that we have a vision to commercialize innovation and to bring startups in medicinal and aromatic plants with best-in-class support system for entrepreneurs. Again, incubation process at our MediHub or at any incubation center flows like this, that it all starts with an idea, right? We go into the pain point situation of market and what are the demands. And now we understand that these are the demands to be clicked and untapped market to be tapped. And that's how we get into the mechanism that how to materialize these thoughts. And then brainstorming is done. We get advice, ideas, and comments on so many things. And then we jump into the legal compliances of these things, that how to start the particular business idea and what are the legal compliances into that. Then we frame a business model and we plan out the whole business on a blueprint, and that's how all the checklists are taken care of, and then you are start and ready to go for the market. Now, if we talk about facilities being provided by MediHub, MediHub TBI has a requisite expertise in areas relevant to medicinal and aromatic plants. We propose to facilitate innovations to become a business venture because such innovations, one person has raised a query that these products are validated or not, right? So that's where our role is, to validate such innovations, to look up to that where it is lacking to hit the market and what are the loopholes into the product or maybe a service. So in all fashion, we make sure that it is ready ready product for market to consume, to use, right? So that's how we facilitate and we promote development of MEP sector along with technology transfer. We have a pool of scientists and requisite expertise at our place, and they have also developed so many technologies which are very much useful for market and people today. So ready-made technology can also be taken. We organize such kind of sensitization workshop, boot camps, and company management seminars in the domain of MAPs. Again, we help out in technology consultation, business consultation, market strategies, and backward forward linkages. That's what a business need this time when there is a starting phase or scaling up phase. Mentoring and networking is taken care of. Infrastructure facilities, again, we provide all the support of our research and development labs and production facilities. Lab scale production facilities are available. Plug and play office spaces are available for incubatees, and meeting room and seminars also given to them. So infra facilities are all well taken care of. Now, access to funding when it comes for business, fueling up it with fund is very much necessary. So we help out into that. We help out to plan business plans and proposal and pitch decks for investors, and we help in linkages with banks and financial institution and investors. We help out incubatees for all kind of knowledge sharing at all phases.
And at our end, when it comes to admission requirements at MediHub TBI, application is to be filled out by the interested candidate. And idea should be novel, business proposal should be commercially feasible, and anyone can do that. I mean, an enterprise, industry association, research and development organization, anyone can fill the form and be an incubatee with us. Qualification and experience should match with your wavelength of business proposal, and one should be free from legal aspects. And onboarding process is very smooth at our end. We invite application from the interested candidate. It is already available on our web page, and I'll be posting this into the chat box within few minutes. Application submission is done and internal screening is done. In that, we don't judge any business proposal, but it's just that we need to make sure that we can handhold the proposal in proper fashion. And then shortlisting is done, and we make sure that it is from our domain, that is agriculture and allied sectors. And committee assessment is done. Then final selection is being communicated to the incubatee, and onboarding process is finalized. These are the contact details of MediHub, and that's how one can contact us. Please screenshot these details for your future reference. Whenever you find your business requires some guidance and mentoring support, you can please contact us on the given details. Thank you. Any queries in this regard? I would like to address the queries if there are some. And already I'm posting the link into the chat box to fill up the incubation support. It is already available on our web page as well. Okay, thank you, Deepa, elaborating on various aspects of incubation. Yes. Thank you, Jayesh, also for highlighting the products for waste management. Especially, this is quite interesting because you know that more than 80–90% are waste. So if you are not making managing the waste, then you will not make any profit out of it, because always we talk on the economic product or economic output of the crop. So, but we leave it waste. So it needs to be managed very well. I think Jayesh has brought out some innovations in this waste management. Say, for example, Trinetra, it is a fast decomposer, very fast. So compared to, and it is very lot of hassle-free. You can do it very quickly. So these are all some of the advantages with that one. And also, we at DMAPR are promoting such kind of innovations and innovators. And because that is need of our, we are thinking only about the grains, but not the straw, not the waste biomass that is left out. Even after utilization by the cattle also, farmyard manure, poultry manure, lot of excreta is being generated. But we are really bothered to manage such kind of things. And many times it happens that it takes more time for decomposition, because natural decomposition takes more time. Say maybe 100 days to get very good decomposition. So in such cases, the accelerator like Trinetra, which is just composition of few microorganisms which are very fast growing and fast decomposing. So such kind of things definitely play a key role. And my appreciations to Mr. Jayesh, who has brought out wonderful things, and he is putting forth very rightly. And these will be the days. These products will be the beating
such innovation. Although there are many such innovations out there, but they are not so easily doable. For example, IARI, our own institution, has developed one straw decomposer, but it needs at least minimum 20 days of processing. So in that cases, you have to directly spend a lot of time on this. So in such cases, these kind of things will be advantageous. And we are putting this presentation just to promote such kind of products, because MediHub is again a lot of products can be endorsed and promotions. If you want to go for subletting, just think over it. So we can find the dealers, and you can always get the business out of it. So all these things are possible. Anyway, so my appreciations to Jayesh and congratulate him for listing in the FLC incubation accelerator program. So again, this is very wonderful program. And if he gets selected, then definitely there will be a lot of opportunities available for him. And at MediHub, we are taking care of everything. So whatever that he says and whatever he thinks, we are just molding them to be put forth in the business part of it. So now the session is open for discussion. If you have any queries on the both presentation number 1 and presentation number 2, so kindly get back to us. And we are on YouTube, so all this session will be there in the YouTube. So if anybody wants such kind of information, we will definitely share the information. And if you have any ideas, especially of business related ideas, just come forward. So we will facilitate you to convert your business into ideas into successful business. With this, I think session is open for discussion. If you have any. Jayesh, I have one question. So what would be the cost of this Trinetra? So what the product you have told, and how fast it can degrade? So whether any measure on the rate of decomposition that it causes when we are spraying on the straw? Yes, sir. We are providing farmers at the cost of only 75 rupees per packet of 50 gram. It is completely affordable segment, and farmer need not to do any jaggery or any glucose type of solution and multiplication. So ready to use with lower cost. And next, whenever we spray or apply Trinetra in the ground or on the straws or crop residues, the bacteria along with the sugar source establishes on the material directly and directly start multiplying in the presence of moisture and soil base. So there is no any harmful effect we have observed till date. In some cases, a farmer has applied almost 20 times of recommended dose, and there is no side effect we have seen. All right, Jayesh, this is again how fast it can degrade. So, yes, it takes almost in case of farmyard manure, it takes a maximum 25 to 30 days. And in case of farm residues like paddy straw and wheat straws, it decomposes within less than 25 days of period. Okay, all right. Now the session is open for discussion. If you have anything, so kindly share your contact details and product list brochure if you have made. So share in the chat box so that. Yes, sir. I have shared my contact number. I am sharing again. Okay. Fine. If there are no questions, so let me thank Jayesh Ranninga for his wonderful presentation on decomposers and other products for organic agriculture, which is going to be the future. And thank you for accepting our invitation to be a part of this program. I also thank Dr. Deepa Patel, who is kind enough to spare and convey the goal of MediHub in converting idea into business. So thank you, Dr. Deepa. I thank one and all of you who have participated in this program and making this program grand success. So this program, entire session will be available on YouTube. So you can
Our MediHub YouTube channel we have already created a lot of literature. We are keeping it. Kindly go through, and also link will be available in MediHub website also. So kindly look I'll at be mailing the link to all the participants, registered participants. So don't That's- worry, you'll get that's that. That's good. Kindly share the message among the stakeholders. If anyone is not attending, if anybody wants to venture into this kind of business, kindly share and do take licenses from Mr. Raninga and spread the message that his products, so that they can be placed well in the market. So with this, thank you all for attending this session. Let me close the session if you have no questions. All right, let me close the session. Okay, Deepa, yeah. Yes, we are happy that you attended, and we wish all the participants happy Diwali and prosperous New Year. Thank you. Thank you all. Thank you, Jayesh. Okay. Thank you, sir.